ਬੱਚਿਓ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 9th ਅਧਿਆਇ 14 ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 14.3 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲੇਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਛੜਗਰਾਫ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਹੁਭੁਜ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 31.8% ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੰਤੂ ਮਨੋਮੈਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ 25.4%। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 22.0% ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਛੜਗਰਾਫ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਛੜਗਰਾਫ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆ ਸਕਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਬਰਾਬਰ 4% ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੜਗਰਾਫ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਇਕਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੜ ਗਰਾਫ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਰਾਬਰ 1 ਇਕਾਈ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਇਕਾਈ ਨੂੰ 4% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 4 8 12 16 20 24 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਔਰ 32 ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 31.8 ਹੈ ਜੋ ਕਿ 32 ਔਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੈ 31.8। ਹੁਣ 31.8 ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਆਏਗੀ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 31.8 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਛੜਗਰਾਫ ਜੋ ਹੈ 31.8 ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੰਤੂ ਮਨੋਵਿਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ 25.4। 25.4 ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੰਤੂ ਮਨੋਵਿਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੋਏਗੀ 25.4% ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ 12.4 ਹੈ। 12.4 ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ 12.4 ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਕਾ ਅਵਸਥਾ 4.3 ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈ 4.3 ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਕਾ ਅਵਸਥਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਅਵਸਥਾ 4.1। 4.3 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਅਵਸਥਾ 4.1 ਤੱਕ ਉਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਛੜਗਰਾਫ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ।
होर कारण का जो ग्राफ है 22.0 तक उच्चा जाएगा। 22.0 जो है 20 और 24 के लगभग किते आ जाएगा विचकार। असीं देखांगे कि 22.4 जो है इत्थे आ रहा है लगभग, और ये बन जाएगा तुहाडा 22 तक उच्चा होर कारण। हुण बच्चों असीं देखिया इसनूं असीं नाम भी लिख सकते हैं, जिवें पहला है प्रजनन सेहत अवस्था। प्रजनन सेहत अवस्था। इस तो बाद है तंतु मनोविकारी अवस्था। दूसरा बनया है तंतु मनोविकारी अवस्था। तीसरा है सट लगन के कारण। चौथा है हिरदा वाहिका अवस्था, और अगे है शाह क्रिया अवस्था, और इस तो अगे है होर कारण। बच्चों जो असीं इसनूं अपनी कापी ते बनाना है, इन्हां दे विच भी ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और थल्ले भी लिख सकते हैं, और इहदे विचों असीं कई सिट्टे कढ़ सकते हैं। जिवें पहला है अलेखी रूप में निरूपित करो। पहला सवाल है वो साडा सड़ग्राफ बनया है, अलेखी रूप में बन गया है। दूसरा है पूरे विश्व में औरतों की खराब सेहत और मौत का वड्डा कारण। हुण बच्चों खराब सेहत और मौत का वड्डा कारण की होएगा, जिहड़ा सड़ग्राफ सब तो उच्चा होएगा। जिवें कि इत्थे साडा सड़ग्राफ जो है पहला सब तो उच्चा है, प्रजनन सेहत अवस्था। इसका मतलब ये हो गया कि इसका उत्तर जो है की होएगा प्रजनन सेहत अवस्था। सो बच्चों असी इस तो होर भी कई सिट्टे कढ़ सकते हैं। सो बच्चों हुण असी दूसरा सवाल हल करांगे, जिहदे विच दिता होया है भारतीय समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां विच प्रति 1000 लड़के अते लड़कियां की निकटतम दस्तक की संख्या के अंकड़े दिते हुए हैं। जिवें पहला है खेत्र, किहड़े-किहड़े खेत्रां विच हन। दूसरा है प्रति 1000 लड़कियां अते लड़कियां की संख्या। इसका मतलब है कि 1000 लड़कियां पिछे लड़कियां की संख्या ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां विच दिती हुई है। जिवें पहला है अनुसूचित जाति, इस विच 1000 लड़कियां पिछे लड़कियां की संख्या कितनी है 940। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, जिहदे विच 1000 लड़कियां के पिछे लड़कियां की संख्या है 970। इस तरह ही अगे देखी जावांगे। लास्ट है शहरी खेत्र। शहरी खेत्र विच 1000 लड़कियां पिछे लड़कियां की संख्या कितनी है 910। हुण सब तो पहला बच्चों इसका कहा गया है छड़ग्राफ बनाने लई। हुण छड़ग्राफ बनाने दे लई असीं एक लेटवी रेखा खिंचांगे, जिस ते खेत्र लिखांगे दर्शावांगे, और उपर नूं एक खड़वी रेखा खिंचांगे जो कि वाई एक्सिस है। इस विच लड़कियां की संख्या प्रति 1000 लड़कियां पिछे दर्शावांगे। हुण बच्चों इस विच जिहड़ा पैमाना लिया गया है एक इकाई जो है 100 लड़कियां। एक इकाई बराबर है 100 लड़कियां, और छड़ग्राफ की चौड़ाई जो है वो आप 1 इकाई लवांगे। छड़ग्राफ की चौड़ाई जो है बराबर 1 इकाई देखांगे असीं। हुण बच्चों सब तो पहला असीं देखांगे कि अनुसूचित जाति, इहदे विच है 940, यानी कि साडा जिहड़ा छड़ग्राफ है 940 तक उपर जाएगा। हुण ये असीं 100 का 1 इकाई नूं 100 लड़कियां के बराबर लिया है। हुण 940 जो है इत्थे आएगा साडा लगभग, क्योंकि साडे को ग्राफ पेपर नहीं है, इसलिए इत्थे असीं लगभग देख सकते हैं कि 940 कित्थे आएगा। इस तरह करके 940 तक उच्चा जाएगा छड़ग्राफ। इसनूं असीं लगभग ही कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो ग्राफ पेपर ते ही बनेगी। पहला आ गया अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति 970 तक। 970 बेटे इत्थे आएगा, जो कि 970 तक उच्चा जाएगा छड़ग्राफ।
970। अनुसूचित जनजाति। इस तो बाद है गैर अनुसूचित जाति और जनजाति यानी कि 920। हुण 920 जो है ये लगभग इत्थे बनेगा 920। इसनूं असीं बिल्कुल फुटे की स्केल की मदद नाल बनावांगे ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। अनुसूचित जाति और जनजाति। इस तो बाद है पिछड़े जिले 950 तक। 950 जो है इत्थे आएगा लगभग 950। पिछड़े जिले बन जाएगा इत्थे छड़ ग्राफ 950 तक उच्चा बन जाएगा। इस तो बाद है 920 गैर पिछड़े जिले। 920 इत्थे आ जाएगा गैर पिछड़े जिले। इसनूं बेटे फुटे की मदद नाल स्केल की मदद नाल बनाना है ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। इस तो बाद है पेंडू खेत्र। पेंडू विच 930 साडा इत्थे आ जाएगा। इधर 920 तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा 930। उस तो बाद है शहरी खेत्र जो कि 910 तक होएगा। 910 लगभग इत्थे आ जाएगा साडा 910 तक उच्चा जाएगा शहरी खेत्र का ग्राफ 910 तक जाएगा शहरी खेत्र। हुण बेटे इहदे विच जो सड़क ग्राफ है ये असीं कई तरह के छिट्टे कढ़ सकते हैं। जिवें कि पहला सड़क ग्राफ बनाओ क्या सीगा सड़क ग्राफ बना चुके आपां। दूसरा है अलग अलग सिट्टे कढ़न वास्ते क्या। हुण अलग अलग सिट्टे असीं ये कढ़ सकते हैं जिवें कि आपां देखांगे सब तो उच्चा सड़क ग्राफ किहड़ा है दूजे नंबर वाला। दूजे नंबर वाला क्या है अनुसूचित जनजाति यानी कि असीं देखांगे कि 1000 लड़कियां पिछे लड़कियां की संख्या जिहड़ी अनुसूचित जनजाति विच सब तो ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे पहला है 940 तक उच्चा, दूसरा है 970 तक, तीसरा है 920 तक, अगे है 950 तक, उस तो बाद है 920, फिर 930 और 910। बेटे कापी ते बनाउण लग्गिया असीं इसदे नाम भी लिख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इस तरह आपां इहदे नाम भी लिख सकते हैं। हुण सब तो उच्चा ग्राफ जो सड़क ग्राफ है वो है अनुसूचित जनजाति। असीं इस तो ये छिट्टा भी कर सकते हैं कि सब तो ज़्यादा लड़कियां प्रति 1000 लड़कियां दे पिछे अनुसूचित जनजाति विच हन। और असीं ये भी देख सकते हैं कि सब तो छोटा ग्राफ किहड़ा है 910 तक, यानी कि असीं कह सकते हैं कि शहरी खेत्र विच प्रति 1000 लड़कियां पिछे लड़कियां की संख्या सब तो घट है। बच्चों हुण असीं तीसरा सवाल हल करांगे जिस विच दिता होया है कि एक राज विच विधान सभा दी चोणां होईयां और उस विच वख-वख पार्टियां द्वारा जित्तियां गईयां सीटां दे परिणाम अते नतीजे हेठां दिते गए हैं। जिवें कि इधर राजनीतिक पार्टियां लिखियां गईयां सारणी विच, इस तरफ सीटां लिखियां गईयां हैं। जिवें इत्थे लिखा गया है कि कोई पार्टी ए है उसने 75 सीटां लईयां, बी पार्टी ने 55 सीटां लईयां, इस तरह सो ऑन करके एफ पार्टी ने 37 सीटां जित्तियां। हुण सब तो पहलां कहा गया है कि छड़ ग्राफ बनाओ। बेटे फिर उस तरह करांगे। छड़ ग्राफ बनाउण दे लई असीं एक लेटवी रेखा खिंचांगे जिसनूं एक्स एक्सिस कहने हाँ, और उस ते लिखांगे राजनीतिक पार्टी और खड़वी रेखा ते सीटां का जिक्र करांगे और इहदे विच एक इकाई नूं पैमाना जो है 10 के बराबर लवांगे। एक इकाई बराबर 10 सीटां, एक इकाई बराबर 10 सीटां। और सड़क ग्राफ की चौड़ाई जो है एक इकाई के बराबर लवांगे आपां और इत्थे लिखांगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। क्योंकि सब तो
जो ज़्यादा सीटां हैं ए पार्टी कोल हैं 75 जो है 70 तो 80 कवर हो जाएगा और ये असी 80 तक लवांगे। हुण सब तो पहला है ए पार्टी जिसका है 75 जो है लगभग इत्थे आएगा। इसका छड़ ग्राफ इस तरह बनेगा 75 तक उचाई होएगी इसकी। पहला ए पार्टी का पार्टी ए और ये आप इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा है 55 जो है लगभग इत्थे आएगा। बच्चों मैं पहला भी गल कर चुका हाँ कि अगर इसनूं असी ग्राफ पेपर ते बनाते हाँ तो बिल्कुल सही बनेगा और हमेशा ही छड़ ग्राफ बनाने के लिए फुट्टे की वरतों जरूर करनी है ताकि एक्यूरेसी आ सके। ये बी पार्टी है। इस तो बाद है सी पार्टी 37 तक 37 लगभग इत्थे आ जाएगा जिसका छड़ ग्राफ जो है 37 तक उच्चा जाएगा। सी पार्टी इसका है सी पार्टी और डी पार्टी है 29 तक 29 जो है इत्थे आ जाएगा जो है डी पार्टी। इसका छड़ ग्राफ जो है 29 तक उच्चा जाएगा डी पार्टी। इस तो बाद है ई पार्टी 10 तक बेटे इस तक आएगा। इसका छड़ ग्राफ जो है 10 तक उच्चा जाएगा। ई पार्टी इस तो बाद है एफ पार्टी 37 तक 37 जो है यही होएगा इस तक उच्चा जाएगा। ये जो लास्ट पार्टी है बची साढ़े को एफ पार्टी इसका छड़ ग्राफ फिर 37 तक उच्चा जाएगा एफ पार्टी। हुण इस विच पहला सवाल तो हल हो गया कि छड़ ग्राफ बनाओ। हुण बेटे दूसरा सवाल है किस पार्टी ने सब तो ज़्यादा सीटां जित्तियां। हुण असीं देखिया जाए इत्थे देखिए असी कि सब तो उच्चा छड़ ग्राफ किहड़ा है ए पार्टी का। इसका मतलब ये हो गया कि ए पार्टी ने सब तो ज़्यादा सीटां प्राप्त कीतियां। हुण बच्चों इत्थे असीं कई तरह के सिट्टे प्राप्त कर सकते हैं। जिवें असीं देखना होए कि किस पार्टी ने सब तो घੱਟ सीटां प्राप्त कीतियां वो असीं देखांगे ई पार्टी ने सब तो घੱਟ सीटां 10 तक प्राप्त कीतियां। प्यारे बच्चों हुण असीं चौथा सवाल हल करांगे जिस दिता होया है कि एक पौधे दियां 40 पत्तियां दियां लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक सही मापिया गई हैं जो कि सारणी में दर्शाई गई हैं। जिवें पहला लंबाई दी हुई है मिलीमीटर में, दूजे पासे पत्तियां की संख्या दी गई है। जिवें 118 तो 126 लंबाई वाली पत्तियां की संख्या कितनी है 3। 127 तो 135 मिलीमीटर तक लंबाई वाली पत्तियां की संख्या कितनी है 5। इस तरह लगातार चलते हुए पत्तियां की संख्या दी हुई है मिलीमीटर में। हुण असीं देखांगे कि जो वर्ग अंतराल बनया है 118 तो 126 फिर 127 तो 135 फिर 136 तो 144। असीं देखा कि वर्ग अंतराल जो है लगातारता विच नहीं है। बेटे आयत चित्र बनाने के लिए वर्ग अंतराल का लगातारता विच होना बहुत जरूरी है। इसनूं लगातारता विच करने के लिए असीं देखांगे जिवें पहला वर्ग अंतराल देखा जो कि 118 तो 126 तक है। दूसरा वर्ग अंतराल देखा जो कि 127 तो 135 तक है। हुण असीं इहदे विच देखा कि इसकी पहले वर्ग अंतराल की उपरली सीमा कितनी है बेटे जो है उपरली सीमा बराबर 126 और दूसरे वर्ग अंतराल देखा कि उहदे विच हेठली सीमा कितनी है हेठली सीमा जो है 127। हुण बेटे उपरली सीमा और हेठली सीमा दोवां दा अंतर प्राप्त करांगे। इन्हां दा अंतर जो है 127 घटाओ 126 करांगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 1। हुण असीं देखांगे कि अंतर नूं 2 नाल भाग करांगे यानी कि अंतर दा अद्ध कर दांगे। अंतर साडे को आया 1/2 कीता ते साडे को प्राप्त हो गया 0.5। हुण असीं की करांगे कि हर वर्ग अंतराल दे विच 100 हेठली सीमा विच
0.5 ਘਟਾਵਾਂਗੇ और उपरली सीमा ਵਿੱਚ 0.5 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ 118 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ 117.5। अब इस दी उपरली सीमा देखिए 126 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 जमा किया तो ये साढ़े को हो गया 126.5। इस तरह जो पहला वर्ग अंतराल बनया 117 तो 117.5 तो 126.5 तक बनया। इस तरह अगला वर्ग अंतराल बनेगा जो ये 0.5 घटावांगे 126.5 तो 135.5। सो बच्चों इसनों असीं करते हुए इधर लिखांगे वर्ग अंतराल दोबारा, फिर एक होर सारणी बनावांगे। जो पहला वर्ग अंतराल बनया 117.5 तो 126.5, फिर 126.5 तो 135.5 और 135.5 तो ये बनेगा 144.5 और फिर 144.5 तो ये बनेगा 153.5 और फिर 153.5 तो लैके बनेगा 162.5 और 162.5 तो ये बनेगा 172.5 और 172.5 तो बनेगा 180.5। और पत्तियां की जो लंबाई है इसकी संख्या उन्नी आएगी 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। सो बच्चों साढ़े को ये जो वर्ग अंतराल प्राप्त होया है, तुसीं देखिया कि ये लगातारता विच है। जिवें कि पहला है 117.5 तो 126.5, फिर 126.5 तो 135.5। सो आपां देखिया कि ये वर्ग अंतराल जो है लगातारता विच प्राप्त हो गया है। सो बच्चों साढ़े कोल हुण एक सारणी प्राप्त हो गई है जिस विच वर्ग अंतराल की लगातारता है। हुण असीं पहला सवाल हल करांगे आयत चित्र बनाओ। हुण आयत चित्र बनाउण दे लई जिवें कि सानूं पता है कि असीं एक लेटवी रेखा खिंचते हाँ एक्स एक्सिस, जिस विच लिखांगे लंबाई मिलीमीटरां विच, और एक खड़वी रेखा खिंचांगे जिस विच लिखांगे पत्तियां की संख्या। हुण जो वर्ग अंतराल हैं साढ़े कोल 117.5 तो 126.5। हुण इत्थे असीं सारे वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं 117.5 तो 126.5, 126.5 तो 135.5, 135.5 तो 144.5। इस तरह सो ऑन अगे लिखे हुए हैं। हुण उपर नूं पत्तियां की संख्या लिखी हुई है। जिवें कि इत्थे 117.5 तो शुरू होया है, क्योंकि ये सिफर तो शुरू नहीं हुंदा, इसलिए इत्थे असीं एक किंक बलदार देवांगे ताकि ये लगातारता बन जाए। हुण जो पहला वर्ग अंतराल है 117.5 तो 126.5 विच पत्तियां की संख्या कितनी है 3। हुण असीं इसकी उचाई जो आयत चित्र की है 3 तक रखांगे। 117.5 तो 126.5 तक जो उचाई है वो 3 तक उच्ची होएगी। हुण दूसरी है वर्ग अंतराल साढ़े कोल 126.5 तो 135.5 जिसकी उचाई होएगी 5। हुण यह 5 तक होएगी उचाई इसकी 126.5 तो 135.5 जिसकी उचाई होएगी 5 तक। ये साढ़े को दूसरा वर्ग अंतराल बन गया। हुण तीसरा आदि चित्र बनाने के लिए 135.5 तो 144.5 जिसकी उचाई होएगी 9 तक। 135.5 ते रखांगे स्केल और इसकी उचाई करांगे असीं 9 तक, और 144.5 ते रख के भी इसकी उचाई करांगे 9 तक। ये साढ़े को अगला चित्र प्राप्त हो जाएगा जिसकी ऊंचाई है 9 तक। हुण देखिया 144.5 तो 153.5 तक जिसकी ऊंचाई है 12। पहला 144.5 ते रखांगे असीं स्केल नूं और इसकी ऊंचाई करांगे इसकी 12 तक जो कि इत्थे तक जाएगी, और फिर 135.5 ते रख के इसकी ऊंचाई 12 तक करांगे।
और ये साढ़े कोल अगला आयत चित्र प्राप्त हो जाएगा। हुण इस तो बाद आएगा 153.5 तो 162.5 जो कि 5 तक उच्चा होएगा। सो बच्चों 153.5 तो 162.5 तक पहले 153.5 तो आप इसनूं कट लगावांगे 5 के बराबर और 162.5 ते रख के इसनूं 5 तक उच्चा करांगे। ये साढ़े को अगला चित्र प्राप्त हो जाएगा। हुण 162.5 तो 172.5 4 तक उच्चा जाएगा जो कि इत्थे आएगा। फुटे नाल इसकी छेद कर लवांगे। हुण 172.5 तक कितना होएगा 4। 172.5 ते स्केल नूं रख के असीं इसनूं 4 तक उच्चा करांगे और इस तो अगला है 172.5 तो 180.5 जो कि 2 तक उच्चा होएगा। हुण इसकी छेद कर लवांगे स्केल दे नाल, ये जो कि इत्थे आएगी और इसकी उचाई कितनी होएगी 2 तक। ये साढ़े कोल एक आयत चित्र प्राप्त हो गया। जो पहला सवाल सीगा कि आयत चित्र बनाओ, असीं एक आयत चित्र बना चुके हाँ। हुण बच्चों दूसरा सवाल है कि इन्हां अंकड़ियां नूं निरूपित करन दे लई होर उचित अलेख है। हुण असीं देखिया कि पहले अलेख किहड़ा कि बनाया सी आयत चित्र। हुण इसनूं की निरूपित करन दे लई इन्हां अंकड़ियां नूं कोई होर भी उचित अलेख है। हाँ बच्चों एक अलेख होर भी है जो कि बारंबारता बहुभुज है। सो बच्चों साढ़े को अगला क्वेश्चन है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वालियां पत्तियां दी संख्या सब तो वध है तो क्यों। देखो बच्चों 144.5 तो लैके 153.5 तक कुल पत्तियों की संख्या 12 है। हुण ये जरूरी नहीं कि सारिया पत्तियों की संख्या जो है लंबाई जो है 153 ही होएगी। हुण इहदे विच हो सकता है कि 146 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या 5 होए, 148 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या जो 5 होएगी, या 153 मिलीमीटर वाली संख्या की पत्ती तो भी हो सकती संख्या। ठीक है जी, इसलिए ਅਸੀਂ कह सकते हाँ कि ये जरूरी नहीं कि 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या सब तो वध है। सो उम्मीद करता हाँ कि तुहानूं मेरा लैक्चर पसंद आया होएगा। धन्यवाद।